Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in Data Science. Today I am going to discuss the complaint handling and service recovery. And the material and the presentation has been taken from the service marketing book by Lovelock and Witz. So the credit for this goes to these authors. And the first is customer complaining behavior. The customer responds to categories to service failure. Service failure means when the customer expect more from the company and from the service provider, but the service is not up to the mark, so the customer feel dissatisfied, and in this case the service failure occurs. So service encounter is unsatisfactory. तो इस केस में क्या आता है कि अगर जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड होता है सर्विस से, तो he will take some form of public action, take some form of private action, and take no action. If he would like to take some form of public action, then he will complain to the service firm, complain to a third party, and take some legal action to seek redress. Or if he takes some form of private action, then he will switch the service provider or spread negative word of mouth communication to the other consumers. The last, take no action, it means he is neutral. The next is understanding customer responses to service failure. Why do customer complain? कि जो कस्टमर है वो क्यों कंप्लेन कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है. Whether he want to obtain compensation, vent their anger, कि अगर वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, या फिर वो हेल्प टू इम्प्रूव द सर्विस, कि वो आगे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको वार्न कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, ऐसी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो. एल्ट्रुस्टिक रीजंस मींस कि वो कंप्लेन इसलिए कर रहा है कि वो दूसरे कस्टमर्स की हेल्प करना चाहता है, कि अगर वो कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता तो जो अदर कस्टमर्स हैं उनको कंपनी से, जो सर्विस प्रोवाइडर से लॉस हो सकता है इन फ्यूचर. सो what proportion of unhappy customers complain, and why don't unhappy customers complain? Who is most likely to complain? Where do customer complain? And where do customer expect when they have made a complaint, right? So there is three dimensions of perceived fairness in service recovery, and the first is, and the complaint handling and service recovery process includes procedural justice, intellectual justice, and the next is outcome justice. So in case of procedural justice, basically it refers to the policies and rules that any customer has to go through to seek fairness, कि अगर उसने justice लेना है तो उसके लिए उसको क्या rules, क्या formalities करनी होंगी. So customers expect the firm to take responsibility, which is the key to the start of a fair procedure. Then followed by a convenient and responsive recovery process, कि वो जो कंपनी है उसका सिस्टम अच्छा हो कंप्लेंट फाइल करने का, और कंपनी इजीली उस प्रॉब्लम को और रिकवरी प्रोसेस के लिए ले जाए. Then interactional justice involves the employees of the firm who provide the service recovery and their behavior towards the customer. So it is important to give the explanation for the failure, कि जो सर्विस अप टू द मार्क नहीं है उसके पीछे रीजंस क्या है. So they have to make efforts to resolve the problem, और जो employees हैं वो easily उस problem को solve कर दे. So the recovery effort must always seen as genuine, honest, and polite. The last is outcome justice. It is related to compensation that a customer receives as a result of loss and inconvenience caused by the service failure. And this compensation is not only for the failure but also for the time, effort, and energy spent during the process of service recovery.
The next is customer satisfaction with the service recovery. If the customer is satisfied with the service recovery, then he will buy again from that company. Then customers response to effective service recovery. Service recovery plays a crucial role in achieving customer satisfaction by testing a firm's commitment to satisfaction and service quality. कि अगर जो कंपनी है, अगर उससे कोई प्रॉब्लम आई है और सर्विस मतलब जो सर्विस स्टैंडर्ड से उसको अचीव नहीं कर पाई है, तो जो कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उसको इजीली रिकवर कर ले, मतलब जल्दी जल्दी से रिकवर कर ले, ताकि जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड फील ना करे. So service recovery impacts customer loyalty and future profitability. कि अगर कंपनी इजीली अपनी प्रॉब्लम अगर कवर अप कर लेती है और कस्टमर को अच्छी सर्विस दोबारा प्रोवाइड कर देती है, तो it will affect the customer loyalty and the profitability of the firm. But sometimes the failure cannot be recovered. For example, spoiled wedding photos. इसको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अब दोबारा ठीक नहीं कर सकता. It means रिकवरी एफर्ट्स नहीं लगा जा सकते. The service recovery paradox, basically it describes the phenomena where the customers who experience an excellent service recovery after a failure feel more satisfied than the customers who had no problem in the first place. इसका मतलब ये है कि अगर किसी मतलब पहले कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की लेकिन जो कस्टमर था उसको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो ये हो गया सर्विस फेलियर. बट जब कंपनी ने सर्विस रिकवरी दी, मीन्स उसको दोबारा जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया, तो उस केस में जो कस्टमर है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है एज कंपेयर टू द कस्टमर हु हैड नो प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस. बट अगर फिर दोबारा सेकेंड टाइम में फिर सर्विस फेलियर आता है, तो उस केस में जो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स है वो अप्लाई नहीं होएगा. सो बेस्ट स्ट्रेटजी इज डू इट राइट द फर्स्ट टाइम. The next is principles of effective service recovery system. So the components of an effective service recovery system include that the first is do the job right the first time. कि आप सबसे पहले यही आप ट्राई करो कि आप जो सर्विस है वो पहली बार में ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो. प्लस इफेक्टिव कंप्लेंट हैंडलिंग. लेकिन अगर बाई चांस कोई कंप्लेंट आती है, कोई सर्विस फेलियर होता है, तो उस केस में आपका जो सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए. तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इट मींस इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, कि कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा और कस्टमर बिकम लॉयल. द नेक्स्ट इज अब कंप्लेंट हैंडलिंग. जो हम इफेक्टिव वर्ड यूज किया वो कैसे होएगा कि अगर जो सर्विस कंप्लेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करो पहले, देन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करो इफेक्टिव वे में. देन थर्ड वन इज लर्न फ्रॉम द रिकवरी एक्सपीरियंस. के अगर जैसे आपने अब दोबारा सर्विस, अगर सर्विस फेलियर आया, तो जो कंपनी ने दोबारा सर्विस प्रोवाइड की है, जो मतलब उसने प्रॉब्लम्स पहले क्या रीजन थे सर्विस फेलियर के, उन जो रीजंस हैं उनका रूट कॉज एनालिसिस किया जाए कि व्हाई द प्रॉब्लम अकर्ड, ताकि जो नेक्स्ट टाइम आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसमें ये प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो. सो क्लोज द लूप बाय वाया फीडबैक. कि आपने जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेना है. फीडबैक में अगर जो भी प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, आपने उन प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि जो आपकी सर्विस है वो फर्स्ट टाइम में ही अच्छी प्रोवाइड की जाए. The next is strategies to reduce customer complaint barriers.
Complaint barriers for dissatisfied customers and strategies to reduce these barriers. First one is inconvenience. Hard to find the right complaint procedure. जैसे कई बार आपने कोई कंपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है तो आपको लगता है कि उनका जो प्रोसीजर है कंपनी का बड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए सोल्यूशन जो स्ट्रेटजी क्या है कि कंपनी को जो फीडबैक सिस्टम है वो इजी बनाना चाहिए और कन्वीनियंट, कि उनको जो सर्विस हॉटलाइन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो इजीली अवेलेबल करवाना चाहिए कस्टमर को। डाउटफुल पे ऑफ, कई बार जो कस्टमर है वो क्या फील करता है कि जो एक्शन है वो कंपनी नहीं लेगी या कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे। सो द अश्योर दैट द फीडबैक इज टेकन सीरियसली, लेकिन कंपनी को अश्योर करना चाहिए कि अगर जैसे भी उनकी प्रॉब्लम्स आती है तो वो मतलब जल्दी से जल्दी कंपनी के साथ जो कस्टमर के साथ कंप्लेंट कम्युनिकेट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो सर्विस फेलियर आया उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अनप्लेजेंटनेस, फियर ऑफ बीइंग ट्रीटेड रूडली, कि अगर अगर वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो कई बार क्या होता है, उनको लगता है कि जो कंपनी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, लेकिन इसलिए स्ट्रेटजी क्या है कि अगर जो कस्टमर है वो फीडबैक देता है तो कंपनी उनको थैंक्स करे, और जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज है उनको अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए ताकि जो कस्टमर है उनके साथ वो पोलाइट वे में बिहेव करे। सो अनोनिमस फीडबैक फॉर्म क्या होता है, जिसमें आपने अपनी पर्टिकुलर्स डिटेल्स नहीं देनी, ताकि जो कस्टमर है वो हेजिटेट फील ना करे, क्योंकि अगर आप अपना नेम मेंशन करते हो तो आपको लगता है कि हम आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अलाउ कर दे अगर आपको कि आपने विदाउट एनी नेम और विदाउट एनी पर्टिकुलर्स आप अपना जो फीडबैक फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हो। तो इससे क्या होएगा, जो कस्टमर है वो मतलब जो अपनी रियल प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकता है। The next is how to enable service recovery. बी प्रोएक्टिव ऑन द स्पॉट, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कस्टमर को तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हर टाइम एक्टिव होना चाहिए कि जैसी प्रॉब्लम आई है उसको वो इमीडिएटली रिजॉल्व कर दें। जो आपके पर्सनल हैं, जो आपके जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो एम्प्लॉयज हैं, उनको आपने ट्रेन करना है कि वो अगर सर्विस फेलियर आता है तो वो अनॉयड ना हो अपने कस्टमर के साथ, वो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उनकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर दें। So rules of thumb for adequate compensation. What is positioning of our firm? अगर कंपनी को कंपनसेशन देनी पड़ती है तो कंपनी कितनी अमाउंट की कंपनसेशन दे, उसके रूल्स ऑफ थंब क्या है। इफ अ फर्म इज नोन फॉर सर्विस एक्सीलेंस एंड चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर क्वालिटी, देन द कस्टमर विल एक्सपेक्ट द सर्विस फेलियर टू बी रेयर, कि अगर कंपनी अच्छी सर्विस देती है तो कस्टमर को कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो कभी कंपनी सर्विस फेलियर की तरफ भी जा सकती है, लेकिन अगर बाई चांस जाती है तो आप उनको हैंडसम जो अमाउंट है वो एज ए कंपनसेशन दोगे। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट वैल्यू। हाउ स्वेयर वाज द सर्विस फेलियर, कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी है, मतलब फेलियर कितनी हद तक आपका कितनी लिमिट तक गया है। अगर तो आपका सर्विस फेलियर बिल्कुल माइनर सा है तो उस केस में आप जैसे अपनी अपॉलजी सॉरी फील कर लो। अगर लगता है कि मतलब सर्विस फेलियर रेट हाई है, प्रॉब्लम ज़्यादा आई है, कस्टमर ने उसके लिए कस्टमर को लॉस हुआ है, देन उस केस में आपको जो रीजनेबल अमाउंट है कंपनसेशन की वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन हु इज द अफेक्टेड कस्टमर, अगर आपका रेगुलर कस्टमर को लॉस हुआ है और वो सर्विस फेलियर से अफेक्टेड हुआ है, देन आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जैसे फर्स्ट टाइम का कस्टमर था, वन टाइम कस्टमर है, तो उसके लिए मैं आपको लगता है कि वो लेस डिमांडिंग है, तो उस केस में वो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत अमाउंट के साथ भी अपनी जो कंपनसेशन है वो दे सकते हो। नेक्स्ट इज सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी हेल्प प्रमोट एंड अचीव सर्विस लॉयल्टी, कि अगर जैसे कंपनी गारंटी देती है तो कस्टमर को लगता है कि अच्छा अगर मेरे को गारंटी मिल रही है प्रोडक्ट के पीछे तो मीन्स कंपनी अच्छी है, तो वो क्या करता है फिर जैसे सर्विस लॉयल्टी बन जाती है। तो इट फोर्सेस द फर्म्स टू फोकस ऑन व्हाट कस्टमर्स वांट,
जब कंपनी ने सर्विस मतलब गारंटी देनी है तो कंपनी पहले देखती है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देन सेट क्लियर स्टैंडर्ड्स, highlight cost of service failures, then help firm identify and overcome fail points, reduce the risk of purchase decision and build long-term loyalty. So these are the parts of service guarantees. Next is how to design service guarantee. First one is unconditional, कि जो आपकी सर्विस गारंटी है it should be unconditional and there should be not any element of surprise for the customer and it is easy to understand and communicate कि आप जो भी गारंटी दे रहे हो वो कस्टमर उसको easily understand कर पाए कि आप क्या दे रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो. मीनिंगफुल टू द कस्टमर, जो भी आप गारंटी दे रहे हो उसमें जो अगर आप कोई कंपनसेशन दे रहे हो देन शुड बी मोर देन एडुकेट टू कवर द सर्विस फेलियर, कि जो सर्विस फेलियर के साथ जो कस्टमर को लॉस हुआ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए, जो कंपनी को आप कस्टमर को कोई बेनिफिट तो हो उससे. इजी टू इन्वॉक, ये जो गारंटी है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर इजीली जो गारंटी है वो अवेल कर सके. देन इजी टू collect on, if the service failure occurs then the consumer should be able to easily collect on the guarantee without any problems. तो फर्स्ट इजी टू इन्वॉक मीन्स कि अगर जैसे आप गारंटी देते हो तो कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है. और दूसरा क्या पॉइंट है कि इजी टू कलेक्ट ऑन, अगर आप गारंटी दे रहे हो तो आपने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर उसको गारंटी को इजीली अवेल कर सके. एंड द गारंटी शुड बी बिलीवेबल, जो गारंटी दे रहे हो उसका ऐसे ऐसी गारंटी नहीं आप दे देंगे किसी को विश्वास नहीं होगा कंपनी ये भी गारंटी दे सकती है. सो इट शुड बी बिलीवेबल. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्विस गारंटी. फर्स्ट वन इज सिंगल एट्रीब्यूट specific guarantee. So in this case, one key attribute of the service is covered by the guarantee. जैसे डोमिनोज का अगर पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो आपको उनको वो बोलते हैं कि हम इतने टाइम के अंदर आपको जो सर्विस डिलीवरी वो दे देंगे. अगर उससे लेट देंगे तो आपको नेक्स्ट परचेजिंग पे जो आपको कोई आपसे नेक्स्ट ऑर्डर पे आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा. दिस इज द सिंगल एट्रीब्यूट स्पेसिफिक गारंटी. The second is multi-attribute specific guarantee. It includes explicit minimum performance standard on a few important attributes. कि आपने सिर्फ few important attributes की गारंटी देनी है. जैसे ये कंपनी है वो कहती है कि our quality commitment to you is to provide a friendly efficient check-in. जैसे कोई होटल है वो कस्टमर को गारंटी दे रहा है कि अगर जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको फ्रेंडली एफिशिएंट चेक इन प्रोवाइड किया जाएगा, क्लीन कंफर्टेबल रूम होएगा, देन ए फ्रेंडली एफिशिएंट चेकआउट. तो दिस इज द few important these are the few important attributes which are guaranteed by the hotel. So if we in your opinion does not deliver on this commitment, कि अगर हम अपनी जो कमिटमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाते तो हम आपको जैसे कुछ कैश में अमाउंट पे करेंगे. The next is full satisfaction guarantee. All the service aspects are guaranteed to be delivered to the full satisfaction of the customer. ठीक है, इसमें क्या है कि full satisfaction guarantee है. For example, if you are not completely satisfied with any item you buy from us at any time during your use of it, कि जब आप इसको यूज कर रहे हो अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप इसको वापस कर सकते हो या फिर आपको जो पूरी अमाउंट है वो रिफंड की जाएगी, लेकिन आपने जो भी करना है विद इन द गारंटेड पीरियड करना है. कंबाइंड गारंटी में क्या आता है, इसमें हमने मल्टी एट्रीब्यूट स्पेसिफिक गारंटी प्लस जो हमारी दूसरी है सिंगल एट्रीब्यूट स्पेसिफिक गारंटी, इसमें फुल सेटिस्फेक्शन गारंटी और हमने मल्टी एट्रीब्यूट स्पेसिफिक गारंटी को कंबाइन कर देना है. फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है वो गारंटी देती है टू डिलीवर द रिपोर्ट ऑन टाइम टू हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टू द कंटेंट्स आउटलाइन इन द प्रपोजल. ये उसने गारंटी दी है कि उनको टाइम पे जो डिलीवर करेंगे रिपोर्ट प्लस हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एंड जो उन्होंने प्रपोजल में
कंटेंट आउटलाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली होएगा। शुड बी फेल टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू दिस गारंटी, कि अगर जो कंपनी है इसके अकॉर्डिंगली नहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाती, and in that case you may feel dissatisfied and you can deduct any amount from the final payment. The next is it is always suitable to introduce a guarantee, कि हर बार जरूरी है कि कंपनी जब अगर गारंटी को इंट्रोड्यूस करे, मीन्स कंपनी हैव ए स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर सर्विस एक्सीलेंस, कि अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो उसके सर्विस फेलियर ना के बराबर है, देन उस केस में अगर कंपनी गारंटी देती है तो जो कस्टमर है उसके माइंड में क्वेश्चन राइज होता है कि कंपनी का सर्विस फेलियर भी हो सकता है ना। तो उस केस में अगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है तो कंपनी को गारंटी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। द कंपनी डजंट हैव गुड क्वालिटी लेवल, दूसरी साइड पे क्या है कि अगर कंपनी का जो क्वालिटी लेवल अभी इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपनी अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ही नहीं अगर अचीव कर पा रही है अभी, देन कंपनी को पहले अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करे, देन उसके बाद गारंटी दे। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव नहीं हो रहे वो गारंटी दे देगी तो कंपनी तो बस फिर लोगों की कंप्लेंट्स को ही हैंडल करने में, उनको सर्विस रिकवरी में ही लगी रहेगी। देन क्वालिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि कई बार क्या आता है कि आपकी जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हो कि आपकी जो क्वालिटी है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस केस में आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। Then next is customer see little financial, personal and physiological risk. अगर कस्टमर को इस टाइप के रिस्क लग रहे हैं देन आपको गारंटी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। The next is discouraging abusive and opportunistic customer behavior. Addressing the challenge of J customers. J customer means who behaves in a thoughtless or abusive fashion, causing problems for the firm, its employees and other customers. कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा मतलब गंदे तरीके से बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उस केस में वो जो कस्टमर्स है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं फर्म के लिए भी और जो साथ में कस्टमर्स बैठे हैं उनके लिए भी। And more potential for mischief in service businesses, especially when many customers are present, then no organization wants an ongoing relationship with that abusive customer. So 7 types of JA customers. First one, the cheat, thinks of various ways to cheat the firm. उनको लगता है कि उनका मेन पर्पस ही क्या है कि कंपनी के साथ चीटिंग करना। नेक्स्ट इज द थीफ, नो इंटेंशन ऑफ पेइंग, उनको लगता है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं कि आप बाईपास इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के, या आप जैसे डायरेक्ट वायर लगा लेते हो बाहर या फिर आप टीवी केबल्स हैं उनकी आप डायरेक्ट वायर के थ्रू अपना जो केबल है चला लेते हो कि हमें बिल ना पे करना पड़े, या फिर अब क्या होता है राइडिंग फ्री ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज आर कॉल्ड एज थीव्स। द नेक्स्ट इज द रूल ब्रेकर, जो रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो उनके लिए जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके लिए उन्होंने स्पेशल रूल्स बनाए होते हैं फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी रीजन। सो सम रूल्स प्रोटेक्ट अदर कस्टमर्स फ्रॉम डेंजरस बिहेवियर। So ensure company rules are necessary and should not be too much or inflexible, कि जो rules हैं वो आपके इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए और इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो जैसे आपको नीड अराइज हो आप रूल्स को चेंज मॉडिफाई कर सको। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि हमें रूल ब्रेक करने में हम इंजॉयमेंट फील करते हैं। द नेक्स्ट इज belligerent, means the customer who shouts loudly and may be mouthing insults, threats, and curses. The service personnel are often abused even when they are not to be blamed, के जैसे बिना वजह आप किसी सर्विस पर्सनल है या सर्विस प्रोवाइडर आप उसको कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो लेकिन उसकी इसमें कोई गलती नहीं है,
अब उसको बिना मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो उसके साथ, और उसके साथ गलत वर्ड्स यूज कर रहे हो. So the firm should ensure employees have skills to deal with difficult situations. The next is family fooders, people who get into arguments with other customers and often members of their own family. These customers also create problems for the service providers. The vendor, these customers includes pouring soft drinks into the bank cash machines. Like कुछ customers ऐसे होते हैं जिनको वो अपनी कह लो कि जैसे अगर किसी सर्विस से वो अनहैप्पी है, तो वो अपनी जैसे किसी से बदला लेने के लिए उनको लगता है कि हम नुकसान कर दें उसका, जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक को बैंक कैश मशीन में डाल देते हो. जो बस सीड्स है उसको आप किसी स्ट्रॉन्ग वेपन के साथ, जैसे किसी नाइफ के साथ, उसके साथ उसको कट कर देते हो, जहाँ होटल फर्नीचर को आप ब्रेक करते हो, तो आपको लगता है कि हम ऐसे करके जो अपना बदला है वो ले सकते हैं. The next is deadbeat, the customers who fail to pay and like as distinct from thieves who never intended to pay in the first place. इनको thieves क्या है, जो अपना मतलब उनकी इंटेंशन है कि हमने पे नहीं करना. Deadbeat means जो कस्टमर कई बार उनको लगता है कि हम पे नहीं कर पाएंगे. So the preventive action is better than cure. So the better option is prepayment, asking for credit card number when the order is taken. So this is all about the service failure and service recovery strategies.